مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو۔ لوگوں کے سینے وہ مسخر کر گیا، صاف گو شیریں سخن طرز شاعر دل لبا، وہ شبستانوں میں کوکا اور منور کر گیا۔ یہ تھے جناب قاری مہتاب عالم صاحب، جو بہت ہی اچھے انداز میں اپنے کلام سے ہم سب کو مستفیض کر رہے تھے۔ حضرات اب آئیے ہم اپنے پروگرام کو اپنے اصل مقصد کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس مقصد کے تحت انعقاد پذیر ہے کہ ہم اس مجلس میں علماء کرام کی قیمتی نصیحتیں سنیں، ان سے مستفیض ہوں، اور اس عزم اور ارادے کے ساتھ سنیں کہ جو باتیں ہمیں علماء کرام یہاں بتلائیں گے، جو پیغام ہمیں یہاں دے کر جائیں گے، انشاءاللہ وہ العزیز ان پر عمل کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے درمیان ملک ہندوستان کا ایک بااناز مقرر اور عصر حاضر کا ابھرتا ہوا ایک شعلہ ہے، نوجوان خطیب بے مثال مقرر ہے، جس کی آواز ہندوستان کے کونے کونے میں سنی جا رہی ہے، اور وہ عظیم مقرر صرف آج ہماری بستی میں قدم رنجا نہیں ہوا، بلکہ وہ دوسرے صوبوں کے اندر بھی اور دوسری جگہ بھی اس کی آواز کو سنا جاتا ہے۔ الحمدللہ وہ عظیم خطیب آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے کہ جس کی راتیں کہیں تو دن کہیں ہوتے ہیں، اور جو کوکتا اور گرجتا ہے تو نوجوانوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا نظر آتا ہے، جس کی آواز میں، جس کی خطابت میں وہ مقناطیسیت ہے جو دلوں کو کھینچ لیتی ہے۔ آئیے میں آپ کو اس عظیم ہستی سے ملاتا چلوں جس سے میری مراد جناب حضرت مفتی ابرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں حضرت والا تشریف لا کر اپنے ولولہ انگیز خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائے کہ چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.
وقال الله تعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي في مقام الآخر الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ٹوٹے ہوئے پروں سے ٹوٹے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ. ٹوٹے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ. آغاز تیرے ہاتھ ہے، انجام اس کے ہاتھ ہے. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء دین معزز و موقر حضرات علماء کرام، بڑی ہی معتبر شخصیت جس کے زیر نظامت اس جلسے کو وجود مل رہا ہے، جناب حضرت مولانا مفتی محمد حفظ الرحمان صاحب. اگر ان کو دیکھا جائے تو ایک یہ بہت اچھے ناظم بھی ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اگر ان کو تقریری لائن میں سنا جائے تو بہت اچھے مقرر بھی ہیں. مدرسے کے روح رواں میرے ساتھی برادر مکرم جناب حضرت مولانا محمد اثر صاحب، اللہ ان تمام علماء کرام کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور دیگر علماء کرام کی پر رونق چہروں سے یہ اسٹیج مزین ہے. آپ حضرات کے روبرو تعمیل حکم کرتے ہوئے حاضری کا موقع نصیب ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار مختصر سے وقت میں کچھ اہم گفتگو کرنے کی، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے 2 وعدے لینا چاہ رہا ہوں، اور وعدہ کرتے وقت بھی اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھیں، اور دل سے وعدہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس وعدے کو تکمیل تک بھی پہنچائے گا. وعدہ صرف رسمی نہ ہو کہ یہ کسی بات کو ہم سے کہنے کے لیے کرنے کے لیے کہے گا تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں گے کہ ہاں کریں گے. یہ ہرگز ایسا ارادہ نہ ہو. 2 وعدے آپ سے میں لے رہا ہوں کہ جو باتیں میں آپ سے کہوں گا کہو انشاءاللہ، ہم غور سے سنیں گے. کہو انشاءاللہ. میرے اور آپ کے قبضے میں کوئی بات نہیں ہے. ہم کسی بھی کام کا ارادہ تو کر سکتے ہیں، لیکن طاقت دینے والی ذات، زور سے بولو کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے. میں آپ کو کچھ بات کہہ سکتا ہوں، آپ کے کان سن کر اس کو ذہن تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن عمل کرانا نہ کرانا اللہ کا کام ہے. لیکن ارادہ انسان کے قبضے میں ہے. اگر انسان ارادہ کرے، اگر انسان نیت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے ارادوں پر اس کے ارادوں میں زندہ کر دیتا ہے. لیکن اگر انسان کا ہی ارادہ نہ ہو تو پھر اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں کہ تم نہ چاہو اللہ پھر بھی تمہاری چاہت کو سامنے لا کر کے کھڑا کرے. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی کبھی حالت کو نہیں بدلتا جس قوم کو خود اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہ ہو. اس لیے آپ اگر اس جلسے کے پنڈال میں، اگر آپ اس مدرسے کے وسیع صحن میں اور اس رونق
रौनक भरे जलसे में आप तशरीफ फरमा हुए हैं। आप तशरीफ फरमा हुए हैं। जिस जलसे को बड़ी अच्छी मोतबर सरपरस्ती हासिल है, जिस मदरसे को बड़ी वजनदार शख्सियत की सरपरस्ती हासिल है, जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद साहब जो तशरीफ फरमा है, अन करीब ही इंशाअल्लाहुल अजीज उनका तफसीली खिताब आप हजरात को सुनना है। तो सबसे पहले आप ये वादा करें इंशाअल्लाह कि हम तमाम बातों को गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा वादा ये कि तमाम बातों को गौर से सुनने के बाद, सुनने के साथ साथ ही ये नियत कर लें कि इंशाअल्लाह जितनी बातें हम तक पहुंचेंगी इंशाअल्लाह अमल करेंगे। जलसों को रस्मी न बनाओ कि तकरीर करने वाले तकरीर करें और हम सुनकर मजे लेकर के खड़े हो जाएं। कोई किसी जज्बाती बात को बयान करे और बस वक्ती तौर पर हम सुनने वाले हो, और जैसे ही मदरसे के गेट में घुसे हैं जलसा सुनने के बाद वैसे ही बाहर निकल जाए, तो जलसे का कोई मकसद नहीं है। कुरान करीम की चंद जगह से मैंने चंद आयतें पढ़ी हैं, एक दो हदीसों का सहारा लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको इंसान बनाकर इस रूए जमीन पर भेजा है। रब्बे दुल जलाल की कसम, एक दिन वो था न ये आसमान था न जमीन थी, न भारी पहाड़ थे न जर्रा था, न कोई दरख्त था न परिंदा था, कोई जानवर भी नहीं था, कोई मखलूक भी नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सारे निजाम को 6 दिन में तैयार किया है। आसमान को धुआं जाहिर करके तैयार किया, कोई सतून आसमान में नहीं लगाया, कोई पिलर इसमें नहीं डाला। अल्लाह ने इसको बगैर सुतून के और बगैर किसी रुकावट और आड़ के आसमान को थामा है और जमीन को पानी पर बिछाया है। अल्लाह का कुरान कहता है कि जमीन को जब पानी पर बिछाया गया, इसके हिलने को रोकने के लिए, इसके ज़लज़ले को बंद करने के लिए अल्लाह ने भारी पहाड़ों को जमाया। ये जो तमाम पहाड़ी इलाके हैं वो वैसे ही नहीं कि अल्लाह ने पहाड़ों को बेमकसद पैदा कर दिया हो, बल्कि इस जमीन को पानी पर रोकने के लिए भारी पहाड़ों को कीलों के एतबार से रोक दिया और जमीन में पहाड़ों को ठोक करके जमीन को रोका। जर्रे से लेकर पहाड़ों तक और पहाड़ों से लेकर जर्रे तक अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया है। और एक दिन वो भी आना है कि जिस तरह से ये पैदाइश हुई है, अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, चांद को पैदा किया, आसमान पर सितारों को पैदा किया, मुझे पैदा किया और आपको पैदा किया। 18,000 मखलूकात कमोबेश कुछ समंदर में रहती हैं, कुछ जानवर चरिंदे चरने वाले जंगल में रहते हैं, कुछ दरिंदे फाड़ खाने वाले वो पहाड़ियों के जंगलात में रहते हैं, कुछ फिजाओं में उड़ते हैं। ये बेशुमार मखलूकात अल्लाह ने एक दिन बनाई है, लेकिन याद रखिए एक दिन मेरे तेरे पैदा होने का था, एक दिन खत्म भी होना है। अल्लाह का कुरान कहता है कि जिस सूरज को तुम आज आसमान पर देखते हो, जो लाखों करोड़ों मील की दूरी से सारी दुनिया को रोशन कर रहा है, एक दिन वो आएगा इधर शम्सु कुव्विरत, अल्लाह इस सूरज को बेनूर कर देगा, इसकी ताकत को खत्म कर दिया जाएगा, इसमें जो तपिश की और ताकत है वो खत्म हो जाएगी, ये बेनूर हो जाएगा। ये चांद जो अपनी मनाजिलों में घूमकर तमाम दुनिया को रोशन कर रहा है, ये भी अपनी मंजिलों को भूल जाएगा। ये चांद और सूरज जो आज अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग सिमतों में बांटे हैं, चांद सूरज से मुलाकात नहीं करता, सूरज चांद से मुलाकात नहीं कर रहा, वो अपने रास्ते पर है, वो अपने रास्ते पर है। लेकिन एक दिन वो आना है, वो जुमिया शम्स वल कमर, अल्लाह चांद और सूरज को एक जगह इकट्ठा कर देगा तो समझ लेना कि कयामत आ चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि यही सूरज एक दिन बेनूर होगा। जिस जमीन पर आप कुर्सी फड़ा करके बैठे हैं, जिस जमीन पर ये इदारा कायम है, जिस जमीन पर हमारे मकानात हैं, जिस जमीन पर हमारी सड़कें हैं, जिस जमीन पर हम रह रहे हैं, अल्लाह इस जमीन को भी कहता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। ए मेरे बंदो, एक दिन वो भी आना है, याद करो उस वक्त को कि इस जमीन को हिला दिया जाएगा, इसमें जलजला होगा। आज तो नशेब फराज है, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंची है, लेकिन अल्लाह एक दिन इस जमीन को बिछे हुई चादर की तरह खींच कर सीधा कर देगा।
मिसाल के तौर पर आप एक कपड़े की चादर को फैलाएं, कोई वजनदार चीज यहां रखे, कुछ यहां रखे, जहां भी वजन की चीज रखी होगी वो चादर नीचे को होगी, और जहां वजन नहीं होगा वो चादर का हिस्सा ऊपर को होगा। लेकिन रजहेटी की जमीन से जुड़े हुए मुसलमानों, अगर उसी चादर को पकड़कर झटका मार दिया जाए, अल्लाह का कुरान कहता है इस जमीन को एक दिन झटका लगना है। वइज़ल अर्ज़ु मुद्दत, इस जमीन के कोनों को पकड़कर अल्लाह ऐसा झटका मारेगा कि इसके अंदर जो भी दफन है सारा निकलकर बाहर आ जाएगा। उसमें मैं भी होंगे और आप भी होंगे, तमाम खजाने निकलकर जमीन से बाहर आ जाएंगे। ये ताकतवर चीज जो आज मेरे तेरे सामने ताकत वाली है, ये जमीन हिला दी जाएगी, ये जमीन जलजले की नजर होगी, और ये आसमान इधर समाउन शक्कत जो आज बड़ा मजबूत है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला एक वक्त ऐसा भी लाएगा जो इस आसमान को फाड़ दिया जाएगा। ये जमीन फटेगी, ये आसमान फटेगा, ये सूरज बेनूर होगा, ये सितारे जो आसमान पर आज रोशन और मुनव्वर है, वइदन नुजूमुन कदरत, सारे सितारे बेनूर होंगे। ये अपनी मंजिलों को भूल जाएंगे, अपने कामों को भूल जाएंगे। मुसलमानों, एक न एक दिन सारी चीजों को फना है। ये जो पहाड़ के जिनके वजन के एतबार से अल्लाह ने जमीन को रोका है, अल्लाह इन्हीं पहाड़ों के जरिए कहता है व तकूनुल जिबालो कल इहनिल मनफूस, कि आज ये ताकत में है होंगे, लेकिन ये पहाड़ ही रेत के जर्रों की तरह, रुई के गालों की तरह जमीन पे उड़ते हुए फिरेंगे। सारी चीजें तरहम बरहम हो जाएंगी, तमाम मकानात मुनहदिम होंगे, तमाम बिल्डिंगें खत्म होंगी। अब आप मुझे बताएं, जब ये सारी चीजें खत्म होंगी तो क्या मैं और आप बचेंगे? कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। आज दुनिया में बेशुमार लोग हैं, कोई किसी धर्म पर चल रहा है, कोई किसी किताब को लेकर बैठा है, किसी का माथा चलते हुए पानी को झुक रहा है, कोई दरख्त को सजदा कर रहा है, कोई अपने ही हाथों से बनाई हुई तस्वीर को सामने रखकर उसी को ही अपना माबूद समझकर सजदा कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर मेहरबानी की है। अगर हमारी पेशानी झुकती है तो वो डर आप बताएं किसका होता है? जोर से कहें, अल्लाह का डर होता है। ये कितनी बड़ी खुशनसीबी है, वरना वो भी तो किसी माँ के लाल है, वो भी तो किसी बाप के बेटे हैं, जो हाथ सुबह को सुबह अपनी माचिस जलाकर एक अपनी दुकान के कोने में जलते हुए चिराग को हाथ जोड़ करके खड़े होकर समझ लेते हैं हमने अपने माबूद को राजी कर लिया, हमने इबादत का हक अदा कर दिया, हमने अपने पालने वाले को जिंदा, अब अपने पालने वाले को राजी कर दिया। अल्लाह कितना मेहरबान है कि इस तमाम मखलूकात और इंसानियत में से मुझे और आपको अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया है। सब साहिब ईमान बैठे हैं, हाथ उठा के बताओ कौन कौन साहिब ईमान है? सबके हाथ उठे, वरना मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। सब साहिब ईमान है। अल्लाह तबारक व तआला सबके ईमान को सलामत रखे। आवाज नहीं आ रही? आमीन तो कहो। अल्लाह सबके ईमान को सलामत रखे, क्योंकि दुनिया में आने का मकसद दुनिया की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी अल्लाह ने इसी ईमान पर रख दी है। दो जुमलों में पूरी जिंदगी और हमेशा हमेशा की जिंदगी को अल्लाह ने ला करके रख दिया है। जो बंदा दो काम करके आ जाएगा वो मेरा होगा, मेरी जन्नत का मुस्तहिक होगा। जो दो कामों से बाहर होकर के आ गया वो हमेशा हमेशा का जहन्नमी होगा, कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा जहन्नम में रहेगा, अल्लाह के कैद खाने में रहेगा, घाटियों में रहेगा, अज़ाबात की नजर रहेगा। ए अल्लाह, वो दो चीजें कौन सी हैं कि जो जहन्नम से बचाएंगी, जहन्नम के अजाब से बचाएंगी? वो दो चीजें क्या हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। एक तो ये कि जब पहले नंबर पर आदमी ईमान में दाखिल हो जाए, अल्लाह को पहचान ले, अल्लाह के नबियों पर ईमान रखे, अल्लाह की किताबों पर ईमान रखे। और दूसरे नंबर पर क्या है? ईमान के साथ साथ आमाल सालिहा। ईमान में तो अल्लाह का शुक्र है हम बड़े मजबूत है, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान
सुभान अल्लाह, अगर मामला अल्लाह की वहदानियत का आता है, अगर मामला रसूल की रिसालत का आता है, अगर मामला किताबों की सदाकत का आता है, इंशाअल्लाहुल अजीज मैंने उन नौजवानों को देखा है जो नमाज की सफों में तो दिखाई नहीं देते, जो रमजान के महीने में मुंह बंद करके रोजे की हालत में तो नजर नहीं आते, जो हज के महीनों में हज के लिए जाते हुए नजर तो नहीं आते, लेकिन जब बात अल्लाह की तौहीद की आती है, जब बात नबी की रिसालत की आती है, जब बात अल्लाह के किताबों की तस्दीक की आती है, तो वही जवान सड़कों के किनारों पर निकल कर कहते हैं जान भी हमारी इस्लाम के लिए है, ईमान भी हमारा अल्लाह के लिए है, अगर मरेंगे तो इस्लाम के खातिर मर जाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। मौत तो सबको आनी है ना? हाथ उठा के बताएगा कि किसी को मौत नहीं आए? एक आदमी बहादुर बैठा है तुम्हारे बीच ऐसा जिसको मौत नहीं आएगी। ऐसा लग रहा है कि इजराइल से मुलाकात करके आ गया है, लेकिन मैं ये कहूं कि अगर इजराइल से मुलाकात भी हो गई, मौत जब भी आनी है, बचना तो खुद इजराइल भी नहीं है। एक दिन मौत को भी मौत आनी है, कोई बचने वाला नहीं। लेकिन मैं और आप अभी तैयारी करने आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान दिया है, अब आमाले सालिहा करने हैं तो जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने जो जहन्नम तैयार की है उसमें गैर ईमान वालों का भी दाखला है, उन ईमान वालों का भी दाखला है कि जो ईमान वाले तो हुए लेकिन उन्होंने आमाले सालिहा नहीं करे, अच्छे अमाल नहीं करे, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी नहीं की, रसूल के तरीके को पसंद नहीं किया, आपकी सुन्नतों को जिंदा नहीं किया, अपनी नियतों को दुरुस्त नहीं किया। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। हम अल्लाह हमारी नियतों को देखता है। रब्बे काबा की कसम, बहुत सारे काम वो हैं कि आप अगर नियत कर लें और वो काम भी वजूद में नहीं आए, अल्लाह नियत करने की वजह से कबूल फरमा लेता है। तो नियतों का सही होना जरूरी है कि नहीं? और हर चीज में हमारी नियतें खराब नजर आती हैं, यहां तक के बहुत सारे नमाजी वो हैं, अल्लाह माफ फरमाए, कि जिनका नमाज पढ़ने का मकसद भी ये है, अरे नमाज इमाम के साथ पढ़ने के बाद कुछ हजरात रकात इतनी लंबी करते हैं, सुन्नत और नफिल इतने लंबे करते हैं कि 10 मिनट बाद सब नमाजियों के बाद तुझे निकलना है, ताकि इमाम के दिल में भी तेरा नाम जमे कि मेरे मुक्तदियों में सबसे बड़ा नमाजी है, महल्ले में भी चर्चा हो कि इससे बड़ा नमाज पढ़ने वाला हमारे महल्ले में नहीं है। मैं अहले ईमान तुम्हारे दिलों से बात करने आया हूं। अगर मकसद यही है कि महल्ला तुम्हें नमाजी कहे, अगर मकसद यही है तुम अपने इमाम की निगाह में बड़ा नमाजी होने की नियत करते हो, अल्लाह कहेगा मेरे बंदे नमाज तो लंबी पढ़ी लेकिन लोगों में शोहरत चाहता था, फुला आदमी की निगाह में शोहरत चाहता था, मुझे तेरे लंबे सजदों की ऐसों की जरूरत नहीं थी, लंबी किरात की जरूरत नहीं थी, लंबी रकात की जरूरत नहीं थी। आज तो बदला उस चीज का मिलेगा जो मेरे लिए करके आया है। बदला किसका मिलेगा? बड़े बड़े स्टेज सजाओ, कैमरे वालों को बुलाओ। अब भाई साकिब नजर उठाएंगे, पता नहीं कैमरे का नाम आ गया, कहीं बुराई तो नहीं करेगा। नहीं, ये तो बहुत बड़ा काम है। दीन की बातों को सारी दुनिया में सुनाने का काम ये मुल्क मीडिया भाई मोहम्मद साकिब के जरिए, न जाने आपका मजमा तो यहाँ बैठा है, न जाने कितने लोग अभी इसी होने वाले प्रोग्राम को अपने बिस्तरों पर लेटे हुए, अपनी बैठकों में बैठे हुए, अपने मदरसों के हुजरे और कमरों में बैठे हुए अभी आपके प्रोग्राम को देख रहे होंगे कि मुफ्ती हिफ्जुर रहमान की निजामत में एक मौलवी तकरीर कर रहा है, रजेटी के बाशिंदे तकरीर और दीन की बातें सुन रहे हैं। ये दीन का पैगाम कैमरे के जरिए से चल रहा है, लेकिन यही कैमरा एक जगह जाकर नाजायज होता है। कोई बड़ा सा चौधरी साहब हो, बड़ा सा रईस हो, ऐलान करता है हम गरीबों को सर्दी में कंबल बांटने वाले हैं, हम गर्मी के मौसम में बारीक कपड़ा गरीबों में बांटने वाले हैं, हम बेबिस्तर वालों को बिस्तर देना चाहते हैं। अब एक स्टेज सजवाया जाता है, कैमरे वाला लगा दिया जाता है, तुम्हें रिकॉर्ड कायम
کرنا ہے. اب اعلان کیا جاتا ہے محلے کے سارے غریب نکل کر کے آئے اور وہ لائن میں لگ جائے. آج ان کو فلاں سامان فلاں چودھری صاحب دے رہا ہے, فلاں نیتا جی دے رہا ہے, فلاں پردھان جی دے رہا ہے. لعنت ہو تیری سخاوت پر اگر تو نے یہ کام دنیا کو دکھانے کے لیے کیا ہے کہ ساری دنیا میں میرا چہرہ روشن ہو اور لوگ کہیں کہ یار چودھری بڑا سخی ہے بھائی, کئی لاکھ روپے ایک گھنٹے میں بڑھ دیے, اتنا سامان کچھ ہی منٹوں میں غریبوں میں تقسیم کر دیا. اگر نیت خراب ہے تو اللہ کہے گا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ, آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو دنیا کی شہرت چاہتا تھا, لوگوں نے واہوائی کر دی, ہمارے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں. میں نے ایک بات یہ کہی, اگر انسان نیت کر لے اور اس عمل کو نہ کیا جائے اور اللہ کو نیت ہی پسند آ جائے تو اس کام کو کیے بغیر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی نیت پر فیصلہ کر دیتا ہے. اب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ حرم کا میدان ہے, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی ہیں اور خانہ کعبہ کے میدان میں ہی حرم محترم میں ہی آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں. نیند آ جاتی ہے. نیند کی حالت میں آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے 2 فرشتے آ رہے ہیں. 2 فرشتے آئے ہیں, دونوں نے آپس میں بات شروع کر دی ہے. ایک فرشتے نے کہا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح, اس سال کتنے لوگ حج کرنے آئے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ کیا کہا میں نے؟ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس سال حج کرنے کتنے لوگ آئے ہیں؟ دوسرے نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کتنے لوگ حج کرنے آئے ہیں. 6 لاکھ آدمی جس میں مرد عورت سب شامل ہیں, 6 لاکھ افراد حج کے لیے آئے ہیں. جب اس نے سنا کہ 6 لاکھ آدمی حج پر آیا ہے, اس نے دوسرا سوال یہ کر دیا کہ یہ بتاؤ ان 6 لاکھ حاجیوں میں سے کس کا حج اللہ کو قبول ہو گیا؟ اللہ نے کتنوں کا حج قبول کر لیا؟ ارے 6 لاکھ میں 6000 تو ایک نمبر کے پیسے والے ہوں گے, حلال کی کمائی والے 10 20 100 50 تو ہوں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی زبانی بات عبداللہ ابن مبارک کو سنائی. دوسرا فرشتہ کانپ کر کے کہنے لگا کہ لوگ 6 لاکھ حج کے لیے آئے ہیں لیکن حج تو ایک کا بھی قبول نہیں. کتنوں کا حج تو ایک کا بھی قبول نہیں. عبداللہ ابن مبارک کیونکہ خود حج کے لیے گئے ہوئے ہیں, پیروں تلے سے زمین سرک گئی, نیند اکھڑنے کے قریب ہو گئی. اللہ یہ کہ ابھی نیند کھلتی کہ فرشتوں میں آپس میں پھر بات شروع ہو گئی. دوسرے نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا نقصان ہے, 6 لاکھ آدمی حج پر آئے ہو اور ایک کا بھی حج اللہ نے قبول نہیں کیا. کون سا گناہ ہے, کون سی کمی ہے کہ ایک کا بھی حج قبول نہیں ہو رہا؟ دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ حج تو 6 لاکھ کا قبول نہیں تھا, لیکن ایک آدمی وہ ہے جو حج کے سفر پر نہیں آیا, جو خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر پایا, جو صفا مروہ کے بیچ دوڑ بھی نہیں کر پایا, وہ مدینے کا سفر بھی نہیں کر پایا, وہ دمشق کے ایک شہر میں رہتا ہے, حج پر بھی نہیں آیا. اللہ نے اس آدمی کی برکت سے 6 کے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ زبان سے نہیں نکلا مسلمانوں. کتنے کی برکت سے؟ ایک آدمی کی برکت سے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اگر کسی مسجد میں 100 نمازی ہیں, رب کعبہ کی قسم وہ 100 کے 100 اس حیثیت کے نہیں ہیں کہ اللہ سب کی نمازوں کو قبول کر لے. ایک انہی نمازیوں میں ایسا ہوتا ہے جو لاٹھی کے سہارے پر آیا, کہیں اپنی آنکھوں کی نابینا ہونے کی وجہ سے نالی کی گار میں پیر چلا گیا, کپڑوں پر بھی چھینٹ آ گئی, کبھی ننگے پیر آ رہا ہے, کبھی کپڑوں پر گرد و غبار ہے, لوگ اسے اپنے پاس کھڑے ہونے میں بھی کراہت محسوس کر رہے ہیں. لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہاری کسی کی نماز ہمیں پسند نہیں ہے, لیکن اس ایک اللہ کے بندے کی وجہ سے تمہاری سب کی نمازیں اللہ قبول کر رہا. یہ نظام اللہ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के कानों में जब फरिश्तों के जरिए से यह आवाज पहुंचाई कि उस फरिश्ते ने कहा कि दमिश्क के शहर में, शहर के करीब एक गांव में एक गरीब आदमी रहता है और उसका कारोबार क्या है? चीनी मिल का मालिक नहीं है, किसी बड़ी फैक्ट्री का मालिक नहीं है, जिसने सखावत करके अल्लाह को राजी कर लिया हो, कोई बड़ा हाजी नमाजी नहीं है, अभी हज पर भी नहीं आया। अल्लाह तबारक व तआला ने घर बैठे हुए उसको कैसे हाजी बना दिया? क्योंकि फरिश्ते आपस में कह रहे हैं अल्लाह ने उसका भी हज कबूल कर लिया और उसकी वजह से 6 लाख लोगों का हज कबूल कर लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने नियत कर ली कि मैं अपने हज के सफर को मुकम्मल करने के बाद उस आदमी से जरूर मिलूंगा कि जिसकी वजह से अल्लाह ने तमाम लोगों का हज कबूल किया हो। आपने सफर हज मुकम्मल किया और वहां से मुकम्मल करने के बाद दमिश्क का सफर किया और पूछते हुए उसी गांव में पहुंच गए और पूछा कि क्या कोई यहाँ जूती गांठने वाला, कारोबार क्या था उसका? जूती गांठने का कारोबार था, यही उसका कारखाना था, ये जूती गांठता था, मुसलमान था, साहिब ईमान था कि जिसकी निशानदही हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को उन फरिश्तों के जरिए से कराई गई थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक उसी दरवाजे पर पहुंच गए जिसकी वजह से 6 लाख लोगों का हज कबूल हो रहा। जाकर के दस्तक दी, अंदर से एक बुझा हुआ चेहरा निकल करके आया, एक गरीब आदमी जाहिर हुआ और दरवाजा खोल के कहा कि आप कौन हैं? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने फरमाया पहले तुम बताओ कि तुम्हारा कारोबार क्या है? उसने कहा कि मेरा कोई कारोबार बड़ा नहीं है, मैं तो एक मामूली से कारोबार चलाने वाला आदमी हूं, मेरा तो जूती गांठने का काम है, मुझे मोची कहा जाता है, मुझे जूते गांठने वाला कहा जाता है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तू अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, अल्लाह ने तुझे अपनी विलायत नसीब फरमाई है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की ये बात सुनकर वो जूती गांठने वाला कहने लगा अरे मेरा तो एड्रेस पूछ लिया है, तुम भी तो बताओ तुम कौन हो? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा मुझे दुनिया वाले अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं। इतना सुनना था कि वो जूती गांठने वाला बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और होश आने के बाद जब खड़ा हुआ, अब्दुल्ला आप मेरे दरवाजे पर, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, आप अल्लाह के इतने बड़े वली हैं, आप मेरे दरवाजे पर हैं, कुर्बान जाइए। ऐसे बुजुर्गों पर हजरत अब्दुल्ला खड़े हुए और आगोश में लेकर के कहा कि अल्लाह का वली मैं नहीं बल्कि मेरे से भी बड़ा तू है। मैंने हरम मुहतरम में तेरा तज़किरा सुना है, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी बरकत से तुझे भी हाजी बना दिया और तेरी बरकत से 6 लाख लोगों का हज कबूल कर लिया। ए अल्लाह के बंदे बस जरा ये बता तेरा कारनामा क्या है? कौन सी नेकी करता है? कौन सी नेकी के जरिए अल्लाह को खुश किया है कि अल्लाह तुझ पर इतना मेहरबान हुआ? इतना सुनना था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मेरी नेकी पूछना चाहते हो? कोई वो मेरा अमल पूछना चाहते हो? मैं कोई बड़ा आबिद नहीं, बड़ा जाहिद नहीं, हाँ एक सिफत है, एक नेकी है जो मेरी निगाह में है। अगर अल्लाह ने मेरा मकाम इतना बुलंद कर दिया है तो एक नेकी मुझे याद है जिसका मैं तज़किरा आपसे किए देता हूं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा कि बताओ वो नेकी क्या है? उस इंसान ने कहा, वो जूती गांठने वाले ने कहा कि मैंने इस साल हज पर जाने का इरादा कर लिया था और पूरे साल जो मैंने अपना कारोबार चलाया है, जूती पॉलिश की है, चप्पलों को सुधारा है, जूतों को गांठा है, 300 दीनार मैंने अपने घर के खर्च से बचाकर हज करने के लिए जोड़े। कितने दीनार? जल्दी बोलो। उस वक्त में 300 दीनार में हज हो जाता होगा। मैंने इस साल हज पर जाने के लिए 300 दीनार इकट्ठे किए और मैंने इरादा किया कि मैं हज पर जाऊंगा, मैं अल्लाह के नबी के रोजे पर जाकर सलामी दूंगा, मैं अपने गुनाहों को धुलवा करके आऊंगा, मैं हजर अस्वद का बोसा लेकर आऊंगा। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अभी हज का सफर शुरू नहीं हुआ था कि एक दिन ऐसा हुआ हमारी पड़ोस में खाना बनने लगा।
मेरे घर में जरा फाका था, मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं था। हमारी पड़ोस में से ऐसी खुशबू उठी कि गोश्त की हंडिया बन रही है, उसके मसाला भुनने की खुशबू हमारे घर में आई। तो मेरी बीवी ने कहा, जाओ पड़ोसी के दरवाजे पर चले जाओ, हो सकता है वो कुछ तुम्हें दे दे, क्योंकि पड़ोसी के घर से हंडिया और सब्जी बनने की खुशबू उठ रही है। मैं अपने पड़ोसी के दरवाजे पर गया, मैंने वो दरवाजा खुलवाया, अंदर से गरीब आदमी निकल करके आया। उसका चेहरा मेरे चेहरे से भी ज्यादा मुरझाया हुआ है, बगैर चप्पलों के है, सर में गर्दो गुबार भरा है। मैंने उससे कहा, ए मेरे पड़ोसी, अल्लाह के बंदे, तेरे घर में सब्जी बन रही है, तेरे घर में गोश्त बन रहा है, मेरे बच्चों को खुशबू जा रही है, क्या अच्छा हो कि तू भी खा ले और उसी में से हमें भी कुछ दे दे, ताकि मेरे बच्चे भी खा करके अपने पेट को भर लें। रजेटी के मुसलमानों, सीना कांपेगा आप कर उसका जिसके घर में गोश्त बन रहा है। वो नीचे को निगाह करके रोने लगा और कहा, अल्लाह के बंदे, जो हंडिया मेरे घर में बन रही है, जो गोश्त मेरे घर में भुन रहा है, वो तेरे लिए हलाल नहीं है। मेरे घर में 7 दिन का फाका था, हमें 7 दिन से बराबर कोई चीज खाने के लिए मयस्सर न हुई। मैंने मजबूर होकर अपनी और अपने बच्चों की जान की सलामती के लिए घर से चाकू उठाया और जंगल की तरफ निकल गया। एक मरा हुआ जानवर मैंने जंगल में पाया, जबकि ईमान वालों के लिए मुर्दार का खाना हराम है, हलाल नहीं है। लेकिन अगर जान खतरे में हो, अगर जान को बचाने का नंबर हो, तो जान बचाने के लिए हराम का इस्तेमाल वक्ती तौर पर जायज है। ऐ मेरे पड़ोसी, जिस गोश्त की तेरे घर में खुशबू जा रही है, वो तेरे लिए हलाल नहीं है, वो मरे हुए जानवर का गोश्त है जो आज मेरे घर में भुन रहा है, वो तेरे लिए जायज नहीं है। ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, जब मेरे पड़ोसी ने ये सुनाया कि मेरे घर में 7 दिन का फाका था, मैं भूल गया कि तूने 300 दीनार किस चीज के लिए जमा किए हैं। मैंने अपनी आस्तीन को उतारा और वो 300 दीनार जो हज करने के लिए जमा किए थे, वो निकाल कर पड़ोसी के हाथ पर रख दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पड़ोसी 7 दिन के फाके से हो और मैं खाने काबा के पास जाकर के कहो, लब्बैक लब्बैक, और सामने से आवाज ही आ गई, ला लब्बैक, तेरा हाजिर होना हमें पसंद नहीं आया, तेरा तवाफ करना हमें अच्छा नहीं लगा। नबी के रोजे पर जाकर अगर मैं सलाम करता, कहीं नबी यूं न कहते थे, क्या अच्छा होता कि तू मेरे रोजे पर नहा कर अपने पड़ोसियों के बच्चों के पेट में रोजी पहुंचा देता। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, मेरे दिल ने फैसला कर लिया, हज तो अगर अल्लाह तौफीक देगा आइंदा साल भी चला जाऊंगा। मैंने वो 300 दीनार इन गरीब बच्चों के लिए कुर्बान कर दी है। अगर कोई सिफत होगी तो ये सिफत हो सकती है कि अल्लाह ने मेरे मकाम को बुलंद कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये जूती काटने वाला हज करने गया था? क्या इसने सफर किया? अभी तो वहां तक नहीं पहुंचा, अभी तो वो सारे काम नहीं किए। लेकिन इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है। अगर आप हम सब मिलकर के नियत सही कर लें तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारी नियतों पर मिलने वाले सम्राट और जज़ा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आती हुई और बरसती हुई मैं और आप जरूर देखेंगे। कहो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैंने यही कहा कि पहले नंबर पर बात सुननी है और दूसरे नंबर पर अमल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने दोनों बातों पर हाथ उठाया। मुफ्ती अब्दुल समी साहब नारे तकबीर हजरत तशरीफ ला रहे हैं। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले 2-3 बातें जो मुझे अर्ज करनी है वो कहकर के रुखसती चाहूंगा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, हर चीज को फना है, पहाड़ों को फना है, आसमान को फना है, जमीन को फना है, मखलूकात को फना है, जर्रे से लेकर पहाड़ों तक, पहाड़ों से लेकर जर्रे तक हर चीज को फना है। बाकी रहने वाली जात, बाकी रहने वाली जात, जोर से बोलो, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की है। एक उंगली और उठा दो, सब कुछ करने वाली जात
आवाज नहीं आ रही। सब कुछ करने वाली जात मेरे अल्लाह की है, इसलिए हमने हर हालात में जीना सीखा है, कभी अल्लाह की रहमत से मायूस और ना उम्मीद नहीं होना। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर वक्त में जीना सिखाया है, हमें हर मोड़ पर चलना सिखाया है। जरूरत इस चीज की है कि हम दुनिया के तमाम दरों को छोड़कर अल्लाह के दर पर आकर के पड़े। कल भी मदद यहीं से मिली थी, आज भी मदद यहीं से मिलेगी। कहो इंशाअल्लाह। पंच वक्ता नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अमाले सालिहा में सबसे पहला अमल नमाज का ही है। कब्र में जो सवाल होने हैं वो अमाल के नहीं बल्कि अकाइद के हैं। सिर्फ पूछ लिया जाएगा तेरा रब कौन है, माना के नहीं माना, कितनी बात मानी कितनी नहीं मानी, ये सवाल नहीं होना। सिर्फ ये पूछा जा रहा है तेरा रब कौन है। जवाब अगर रब को सही माना में रब मान लिया होगा, अल्लाह तबारक व तआला इस जबान को कुव्वत देगा, इस जबान को ताकत देगा कि फिर ये जवाब देगी मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल अकीदे का ये होगा कि तेरा दीन क्या है, कितना अमल किया, कितना माना, कितना अपनी जिंदगी में जिंदा किया, ये सवाल बाद में होगा। अभी तो सिर्फ ये बता दे कि दीन कौन सा है। अगर सही माना में मजहब इस्लाम को पसंद किया होगा, जिस मजहब को अल्लाह रब्बुल जलाल ने पसंद किया और कहा है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के मजहब इस्लाम वो है जो अल्लाह का पसंदीदा मजहब है, और वही मजहब अल्लाह ने मुझे और आपको दिया है। कहो सुभान अल्लाह। इससे पाकीज़ा मजहब, इससे अच्छा मजहब, हर मोड़ पर रहनुमाई करने वाला कोई मजहब अगर है तो मजहब इस्लाम है। वो किसी भी मोड़ पर मायूस होने नहीं देता। खुदा की कसम, डिप्रेशन का शिकार होकर फांसी लगाने वालों की ज्यादातर तादाद वो है जो ईमान से महरूम है। मैंने अखबारों में देखा, आपने भी पढ़ा होगा, फला इंजीनियर तिमंजिली मंजिला से कूदकर जान को हलाक कर गया, कोई फांसी का फंदा डालकर अपने आप को हलाक कर चुका। अरे क्यों हुआ? उसके पास तो बड़ी तालीम थी, हाँ डिग्रियां उसके पास थी, दुनियावी तालीमात थी, लेकिन ईमान से खाली था। अगर ईमान वाला होता तो चाहे कितनी ही डिग्रियां हासिल करके नाकाम हो जाता, फिर भी कहता कि मेरा काम तो करने का था, अंजाम किसके हाथ है? अल्लाह के हाथ। तो ईमान वाले को रास्ता मिल जाता है। बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी अगर अल्लाह ना करे नाकामी का सामना हो तो अल्लाह सब्र का दामन इसके सामने खोल देता है कि अभी एक चीज और है कि अच्छी बुरी तकदीर पर तुझे ईमान लाना है। अगर तेरी जिंदगी में कुछ गलत भी हो रहा है, तूने लाख मेहनतें की है, इसके बावजूद भी पलटा हुआ नजर आ रहा है, तो तुझे यहां आके सबर हो जाएगा कि तकदीर में ऐसा ही था, तकदीर में ऐसा ही था। मैंने बहुत सौ को सुना कि एक दोस्त, एक नौजवान बैठा हुआ खाना खा रहा है, अभी फोन आ जाता है कि फला दोस्त बुला रहा है, खाना भी छोड़ देता है, लुकमा डाल देता है, अपनी सवारी को उठाता है, जहां दोस्त ने लोकेशन दी है, जहां दोस्त खड़ा है वहां के लिए सवारी उठाता है, और अभी रास्ते में ही होता है, अभी दोस्त से मुलाकात भी नहीं पाता कि हजरत इजराइल से मुलाकात हो जाती है। मोटरसाइकिल टकरा गई, ये बरसात के मौसम में फिसल गई और ये नौजवान दुनिया से चल बसा। अम्मा भी क्या कहती है, काश इसके दोस्त की कोई कॉल ही ना आई हुई होती। बहन भी कहती काश के मोटरसाइकिल घर पे खड़ी हुई ना होती। भाई भी कहता है काश के चाबी इसके हाथ न लगती। इन सारी बातों का जवाब ये है, अरे क्यों ना चाबी मिलती, क्यों ना मोटरसाइकिल मिलती, और क्यों ना दोस्त की कॉल आती। जब इसको जाना वही था और मौत वही की लिखी थी, तो ना बाइक रोक सकती थी, ना आपका मना करना रोक सकता था। जहां जिस जगह मौत आनी है, मौत अपने वक्त से पहले तुझे वहां खींच कर ले जाएगी, चाहे कितना ही तू मसरूफ। मरना है कि नहीं? पक्के मकान वाले बच जाएंगे। कभी ऐसा होता
तो फिर गरीब भी अपने कच्चे मकानों को छोड़कर पक्कों में घुस जाते कि मलकुल मौत यहां तक नहीं पहुंचेगा। नहीं, मलकुल मौत ने सबके दरवाजों को देखा है, उसके लिए किसी से नाम पूछने की जरूरत नहीं। मुसलमानों, जिस तरह से मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ किसी से पूछता है कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन कब आ रही है और कौन से प्लेटफार्म पर आ रही है, सामने वाला यह जरूर पूछता है क्या तुम्हें दिल्ली जाना है, कि हाँ मुझे दिल्ली जाना है। कौन सी ट्रेन में सवार होना है, कि राजधानी में जाना है, जरा टिकट तो दिखाइए। कौन सी ट्रेन में बैठने की तमन्ना में खड़े हो, क्या उस ट्रेन का टिकट भी तुम्हारे पास है कि नहीं है? स्टेशन पर खड़ा ही वो होता है जिसके पास टिकट होता है। रेल में सफर करने की तैयारी में अगर टिकट ना हो तो बताओ कोई स्टेशन पर जाएगा? अगर जाएगा तो फंस जाएगा। जिस तरह तैयार होकर वहां खड़े होते हो, जिस तरह रेलगाड़ी के इंतजार में टिकट से और कागजात से कंप्लीट होकर खड़े होते हो, हर वक्त दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार रहो। हम इस जमीन पर मुसाफिर की तरह हैं, हम बाजार से गुजरे जरूर हैं, खरीदार नहीं है। एक वक्त दिया है अल्लाह ने जमीन पर वक्त गुजारने का। खुदा की कसम, कोई ना कोई सूरज निकलेगा कि सूरज छिपने से पहले हमारा सूरज छिप जाएगा। कोई सूरज छिपेगा कि सूरज निकलने से पहले हमारा सूरज छिप जाएगा। मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करने की तरफ चला। अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का घूंट सबके लिए मुकद्दर किया है। न जाने कौन कब मर रहा है, कौन कब दुनिया से जा रहा है, अल्लाह ने सब कुछ तय कर रखा। मैं तो यूं कहता हूं, मौत को इतनी दूर न समझ कि बचपने में यूं सोचे कि अभी जवानी आएगी, जवानी में सोचे कि बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में भी सोचे कि नहीं अभी तो 70 साल की हुई है, अभी तो फला बुजुर्ग हमारे गांव में 100 साल की उम्र लेके बैठा है। नहीं, अल्लाह ने उसको 100 साल की दी है तो वो और अपनी पूरी कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस दिन तेरा जवानी में कदम हो, हजरत इजराइल का ना उसी दिन में तय हो चुका हो। और मैं तो इतना भी कह देता हूं, ए मर्द मुसलमान, ए ईमान वाले, जब तू अपने हाथ से पानी का मग लेकर अपने सर पर डालता हुआ होता है तो जरा सोच लिया कर कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरी जिंदगी का ये आखिरी गुस्ल हो, आइंदा गुस्ल ऐसा आने वाला हो कि पानी डालने वाला भी कोई और हाथ हो, बदन को रगड़ने वाला भी कोई और हाथ हो। खुदा की कसम, वो दिन आना है कि अगर पानी भी जरा तेज गर्म हो रहा है तो ये भी नहीं कह सकता, तू यूं भी नहीं पुकार सकता, तू पानी डालने वाले के हाथ को नहीं पकड़ सकता कि भाई मुझे ये पानी तेज लग रहा है, मेरे बदन पर इस पानी को न डालो। तुम मैं इतने बेजान होकर के पढ़ोगे कि पानी तेज डले या ठंडा डले बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। बदन रगड़ने वाला भी कोई और होगा, करवट दिलाने वाला भी कोई और होगा। नहला करके और नहा करके जब तुम कपड़े अपने बदन पर डालते हो, कपड़ों के बटन खोलते हुए होते हो, अरे एक लम्हे के लिए सोच लिया करो, जिस कमीज को पहन करके चला हूं ऐसा भी तो हो सकता है कि इन बटनों को मेरे हाथों से खुलने का नंबर ना आए, बल्कि इस कमीज को कैंची से काट कर निकालने की नौबत आ जाए। अब्बा भी कहे, बड़ा भाई भी कहे, अम्मी से पूछा जाए, बहन से पूछा जाए, लाओ कैंची ला करके दो, बहन नहीं पूछती कैंची का क्या करना है। अगर पूछ लिया जाता है तो जवाब दिया जाता है कि तेरे भाई ने जो कमीज पहनी है वो उतारी नहीं जा रही, बल्कि उसको काट करके निकालना है। उस कमीज को निकाल कर नहला कर अब बगैर सिला कपड़ा पहनाने वाला भी कोई और ही है। बड़े कपड़े पसंद किए जिंदगी में, पहनो के ना पहनो, ये कलर पसंद है कि नहीं, ये कपड़ा पहनना है कि नहीं, लेकिन एक दिन वो कि तू ये भी नहीं कह सकेगा कि मैं इस कपड़े को नहीं पहन सकता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो चाहे ना चाहे उस कपड़े में लपेट कर तुझे चारपाई पर लिटा दिया जाएगा। एक हदीस में यूं आया है जिसका मफहूम ये है कि आमाले सालिहा से अगर लबरेज है, अगर कोई अल्लाह का वली है, अल्लाह को राजी किया है,
नबी के तरीके और अदाओं को अपनी अदा बनाई है, तो वो जाने वाला जनाजा अपनी आवाज से पुकार करके कहता है, ओ मुझे ले जाने वालों, अपने कंधों पर सवार करके कब्रिस्तान की तरफ ले जाने वालों, जरा कदम तेज रखो, मुझे इस दुनिया से निकालकर राहत के घर में पहुंचा दो। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत की राहतें उसके सामने खोली हुई होती हैं। लेकिन इसका अपोजिट सुन ले, अगर अमाल बेकार हैं, नमाजों का निसाब मुकम्मल नहीं, गैरों की इत्तिबा में गुजर गई सारी जिंदगी, उन्होंने खड़े होकर पिया तो हमने भी पिया, नशा उन्होंने किया तो हमने भी किया, कोई हराम काम उन्होंने भी किया तो हमने भी किया, कोई फर्क नहीं करा, नबी के तरीके से दूर रहे, नबी के बताए हुए रास्ते से हम हर वक्त अलग रहे। अगर जिंदगी लापरवाही की वो गुजरी है, न नमाज का निसाब मुकम्मल है, न रोजे का निसाब मुकम्मल है, न ज़कात वक्त पर अदा की है, तो फिर हदीस ये है कि जब ये जनाजा जाता हुआ होता है, ये कहता है अफसोस मुझे मेरी बर्बादी की तरफ कहां ले जा रहे हो। आग जलती हुई नजर आ रही है, जहन्नम का अजाब सामने नजर आ रहा है। इसलिए इस जमीन से जुड़े हुए लोगों इस जलसे को रस्मी न समझते हुए इरादा कर लो, इंशाअल्लाह अभी वक्त है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अभी मौत तो नहीं आई, मौत से पहले अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा है कि मुझसे इतना डरो जैसे डरने का हक है, और ऐसे अमल करो कि जब तुम्हारी मौत आए तो तुम्हें मुसलमान कहा जा रहा हो, तुम ईमान वाले हो, तुम कब्र की तरफ जाते हुए यूं कहते हुए हो हमें जल्दी पहुंचा दो, आराम का बिस्तर लगा है, यूं कहते हुए ना हो हाय रे मेरी बर्बादी, मुझे कहां ले जा करके जा रहे हो। खुदा की कसम, अगर आमाल में कमी है, अगर नबी के तरीके से नफरत की है, कुरान के बताए हुए रास्ते को छोड़कर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारी है, तो वही कब्र का गड्ढा जहन्नम की क्यारी में तब्दील होकर मेरे और आपके सामने या हर उस आदमी के सामने आने वाला है जो सुन्नत और शरीयत से अलग हटकर जिंदगी गुजार रहा है। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह, मरने से पहले मरने की तैयारी करेंगे। अगर दिल्ली का सफर या कहीं के सफर की तारीख रखी हुई हो तो अभी उम्मीद रहती है कि अभी 15 दिन है मेरे सफर में, पैसा नहीं है तो उधार ले लूंगा, कपड़ा नहीं है तो सिलवा लूंगा, कोई सामान रास्ते में ले जाना है तो तैयार करवा लूंगा। लेकिन मुसलमानों, उसकी तो तारीख लिखी हुई है कि अभी 15 दिन मेरी उड़ान में है, अभी 15 दिन मेरी गाड़ी में है। मौत का तो कोई वक्त भी तय नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ईशा की नमाज भी छोड़ी हो, जुमे से लेके मंगल बुध का दिन आ गया हो, अभी जुमे की 2 रकात पढ़कर कोई एक नमाज न पढ़ी हो और इजराइल आकर के खड़ा हो गया हो। बताओ क्या जवाब दोगे? अगर ये चेहरा नबी के चेहरे के मुताबिक नहीं गया, अगर ये पूछ लिया जाए कि तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी दी थी संवरने के लिए, सुधरने के लिए, बनने के लिए, लापरवाही की काट करके आ गया, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी मर्जी के मुताबिक कैद खाने में डाल देगा, फिर कोई चारा नहीं होगा। अल्लाह अपने फजल से किसी को छोड़े वो एक अलग बात है, लेकिन इंसाफ का तकाजा तो यह है कि मुजरिम को सजा दी जाती है, मुजरिम के लिए कैद खाना होता है। इसलिए आप वादा करें इंशाअल्लाह कि मरने से पहले हम आखिरत की तैयारी करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। 5 वक्ता नमाजी बनेंगे। 15 साल से तो मैं देख रहा हूं इस वादे को होते होते, इसीलिए मैंने पहले ही कहा रस्मी हाथ मत उठाना, अब वक्त वो नहीं। दुनिया की सड़कों को देखो और हालात को देखो और इसकी गलियों में चलने वाली हवाओं के रुख को देखो। रब्बे काबा की कसम, ये अकाबिर जानते हैं, ये अकाबिर पढ़ते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं, और हम जैसे तालिब इल्मों को बताते हैं कि मुसलमान की टोपी के खिलाफ न जाने कितने मशवरे हो चुके हैं, दाढ़ी के खिलाफ न जाने कितनी बड़ी मीटिंग बैठी है, मस्जिदों के दरवाजों के खिलाफ, मस्जिद की अजान के खिलाफ, मस्जिद के मनारों के खिलाफ बहुत सारे मशवरे चल रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अगर अल्लाह हमसे राजी रहा तो सबके मशवरे नाकाम होंगे, कहो इंशाअल्लाह। और अगर अल्लाह हमसे राजी ना हुआ, अल्लाह ना करे,
तो फिर तो सब कुछ झेलना पड़ेगा मुसलमानों, जिसकी झेलने की हम में ताकत नहीं है। इसलिए अभी वक्त है, मरने से पहले हम मरने की तैयारी करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। खास तौर से मेरा नौजवान कि जिसके सजदे का अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर तस्किरा करता है। जब कोई नौजवान जिसकी बाजू में ताकत हो, जिसके पूरे आज़ा में जिस्म में ताकत हो और वो सजदा कर रहा हो, अल्लाह उसके सजदे का अर्श पर तस्किरा करता हुआ होता है। नौजवानों अभी वक्त है, गफलत की जिंदगी से निकलो, मुस्तकबिल तुम ही हो, इस कौम की ताकत तुम ही हो, बनना सवरना तुम्हारे ही ताकत में है। तुम्हारी बाजू की ताकत मुसलमान की इस बचने वाली इज्जत के खातिर कुर्बान होनी चाहिए, मजहब इस्लाम के लिए कुर्बान होनी चाहिए। इसलिए आप रस्मी हाथ ना उठाकर दिल से इरादा कर लो, इंशाअल्लाह 5 वक्ता नमाजी बने इंशाअल्लाह। दूसरा वादा आप ये कर लो कि जब भी इंशाअल्लाह बोलेंगे हम अपनी जबान से तो सच बोलेंगे। जिसे झूठ बोलना हो इरादा ना करियो, क्योंकि झूठा इरादा भी अच्छा नहीं। अल करीम इदा वादा वफा, जब नेक आदमी वादा करता है तो पूरा करने की नियत करता है और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। आप नियत करें इंशाअल्लाह, हमारी जान जाए, हमारा माल जाए, लेकिन हमारी जबान से अगर कोई जुमला निकलेगा कहो इंशाअल्लाह तो वो सच होगा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इंसान का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, इंसान का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून से गारा बनाया। मेरी तरफ देख ले, कूलर तो स्टेज पे चलेगा, आपको तो हवा आ रही कि नहीं आ रही? इन्हीं शेरों में कहा शायर ने, इंसान का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां। ओ नौजवानों, महंगी महंगी साबुन इस्तेमाल करने वालों, महंगी महंगी ट्यूब अपने चेहरों पर लगाने वालों, ये चेहरा साबुन और ट्यूब से सफेद नहीं होने वाला। यौम तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, अल्लाह का कुरान कहता है बाज़ चेहरे चमकदार होंगे और बाज़ चेहरे सियाह होंगे। बिलाल हबशी का चेहरा चांद से भी ज्यादा रोशन होगा। इस अंग्रेजी जमीन से जुड़े हुए गोरी चमड़े वाले हमारे दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन सिया चेहरे में खड़े होंगे। ये नहीं कि जो दुनिया में गोरा होगा वहां भी गोरा ही होगा, जो दुनिया में काला होगा वहां भी काला होगा, नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जिसके चेहरे पर अपना नूर जाहिर करेगा वो होगा जिससे अल्लाह राजी होगा, और जिस चेहरे पर फिटकार होगी अल्लाह की वो सिया पड़ा हुआ होगा। तो इन तमाम बातों को सामने रखकर शायर ने कहा, इंसान का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून से गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां।